Sir, I would request you to just few words about the project, about what you feel. To begin with, let me congratulate Soumitra and you and your entire team for, in a way I can say, to make Khar beautiful. I am a Bandra, I am a Khar Vasi. So we always want a new development which should add to the beauty of Khar. At the same time, it should take care of the original tenants, their rights, their protection. And I am so happy that you all have done the same thing. You all have done the entire exercise of taking care of entire original tenants, and apart from that, proposing a building or a proposal by the name of West Avenue Realty. Now that is also connecting to Khar and Santa Cruz. Because we have Atulji, West Avenue Road, East Avenue Road, Central Avenue Road. Eventually some name has been changed, but West Avenue is still there. So I propose and I feel that your group can get more project on West Avenue Road also, and you can flourish your business and make more beauty addition to this constituency in this part. Let me congratulate you, and let me congratulate Ajmera Bhai also to be with all these our new players, I can say, and let's make the best. Thank you so much. Thank you so much, sir, for coming and gracing the occasion with your presence. We are very glad to have your support, and hopefully we will deliver what you are expecting from us. Thank you. Thank you so much, Ji. Thank you so much. Thank you, everybody. Parag bhai, I would request you to just maybe a couple of words for encouragement. So thank you very much for inviting me here. Congratulations, all the best, both of you gentlemen. I believe this is a very good location and you will have all success. Just maintain your quality and control that we are already informed. Developers are making money, but most of the money goes to banks. उसको अवॉइड करना सक्सेस होने का एक ही थैंक यू। Thank you, sir. तो बॉम्बे में आज के दिन में सबसे प्राइम लोकेशन इज़ खार और बांद्रा, और उस खार बांद्रा मार्केट में अगर आप 16 रोड पकड़ेंगे जो खार जिमखाना के आसपास है, ये उसका भी सबसे प्राइम लोकेशन है। तो हमारे लिए ये जो कॉर्नर प्लॉट है, ये 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, और यहाँ पे हम लग्जरी को रीडिफाइन करने के लिए एक 3 बेड 4 बेड का 18 टावर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, जिसकी कंप्लीशन 2 साल के अंदर हम टारगेट कर रहे हैं। We are looking to redefine luxury in terms of amenities, in terms of access, in terms of elevation, in terms of the floor planning, which are not only aesthetic but actually usable also. सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में और उस 2000 को एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाने में एक डिफरेंस है। हम शायद वो डिफरेंस को जस्टिफाई करना चाहते हैं विद दिस प्रोजेक्ट। सो वी आर होपिंग दैट रेसिडेंट्स ऑफ खार विल गेट गुड ऑप्शंस, रेसिडेंट्स ऑफ खार विल एक्चुअली गेट वैल्यू फॉर देयर लग्जरी प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाट वी इंटेंड टू बिलीव। तो वेस्ट एवेन्यू ये प्रोजेक्ट इसको डेवलप कर रहा है विथ गाइडेंस फ्रॉम अजमेरा, हु विल गाइड अस विद देयर एक्सपीरियंस and professional infrastructure that they have built over a period of year, and combine we will be able to deliver a product which will be coming with the newness as well as with the experience approach. So that's what is our target. So ये ऑडियंस हमारा ऐसा बिलीफ है, ये एफ्लुएंट फैमिलीज़ होगी, एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स होंगे जो सिर्फ स्पेस को नहीं मायने रखते होंगे, वो मायने रखते होंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, hospitals, schools, your entertainment, your restaurants, your shopping options, and इन सबको जब कंबाइन करके आपके लोकेशन पे एक लग्जरी प्रोडक्ट आता है जिसमें एमिनिटीज़ भी हो, जिसमें आपके एलिवेशन बिल्डिंग की बहुत ब्यूटीफुल हो, वहाँ उसकी वैल्यू एक अलग
लग्जरी को डिफाइन करती है, हमें उन फैमिलीज और उन इंडिविजुअल्स पे फोकस करना है। आप अगर ये प्रोजेक्ट ओवर एंड अराउंड खार बांद्रा में देखेंगे, आपके पास बहुत बड़े लैंड पार्सल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे लैंड पार्सल होते हैं, जिसकी लिमिटेशन की वजह से आपकी जो इंटरनल एम्यूनिटीज़ होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ 1000 square meter, my partner is Soumitra Bhatkalkar, who is architect by profession. We have an in-house architectural team. With help of that, what we've done is we've given amenities which is not only linked to just gym and indoor games, but we also have a inbound theater. We have a walking track. We have a terrace lounge. So ये सब जब 1000 square meter में आपको पैक करके एक प्रीमियमनेस के प्रोडक्ट के साथ दिया जाता है, तो उसकी वैल्यूएशन बदल जाती है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग, क्योंकि आप अगर इन एंड अराउंड देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कम से कम 7-8 प्रोजेक्ट होंगे जिसमें स्विमिंग पूल होगा, उसके बियॉन्ड स्विमिंग पूल नहीं है। हमारे 1000 square meter प्लॉट पे हमने स्विमिंग पूल भी ऑफर किया हुआ है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पैकेजिंग दैट वी हैव डन फॉर द प्रोडक्ट। लास्टली सर, सो ये हमारा पहला एसोसिएशन है जहाँ पे हम अजमेरा सिटीस्केप्स के साथ ज्वाइन करके ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब तक की जो जर्नी रही है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, क्योंकि हमारी पैशन और एंथुसियाज्म एज न्यू प्लेयर एंड उनकी गाइडेंस एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहा है अभी तक। एंड हमें ऐसा लगता है कि ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करके हम खार बांद्रा या सबब के रेसिडेंट्स को नए प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस, न्यू प्रोडक्ट, न्यू लोकेशन एंड न्यू डिज़ाइंस के साथ वी विल बी एबल टू डिलीवर अ प्रोडक्ट विच विल बी वैल्यूड इन द मार्केट. It will be good option for the residents of in and around Khar and Bandra. That's the focus area. So we are hoping we'll do many more projects together. So हमारी G+18 की बिल्डिंग है जिसमें G+2 कमर्शियल है, 3 माले का हमारा पार्किंग है, फिर एक पोडियम फ्लोर है. मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रिंग ऑन करना चाहता हूँ. आप हर बिल्डिंग में देख लीजिए आपके पास स्टैक पार्किंग होगी, हमारे पास सारी पार्किंग फ्लोर पार्किंग है. So every parking is independent and is a floor parking. This is one of the unique proposition that we offer to Khar. Generally ये बहुत कॉमन लगता है, बट खार बांद्रा मार्केट में बहुत मुश्किल होती है पार्किंग की. एंड एवरी फ्लैट हैज़ 3 to 4 पार्किंग विच वी कैन एलोकेट. सो दैट्स वन ऑफ द प्राइम थिंग. और उसके ऊपर हमारे टेनेंट्स है, कुछ जो पुराने टेनेंट्स यहाँ पे रहते थे. एंड देन द फर्स्ट रेसिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट्स फ्रॉम 13th फ्लोर और ये 18 तक आपके सारे अनरिस्ट्रिक्टेड सी व्यू है वन साइड, और वन साइड पे आपको एयरपोर्ट का व्यू है. सो ईच फ्लोर वी हैव 2 फ्लैट्स एंड दैट्स द काइंड ऑफ प्रिवेसी एंड लग्जरी दैट वीव केप्ट एंड इंटैक्ट. आज का दिन ये प्रोजेक्ट का रिस्टार्ट है. आशीष जी, पराग भाई, इन लोगों ने आके यहाँ पे ब्लेसिंग्स दी है. हमारी कोशिश ये रहेगी कि खार के अंदर ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी हम ये हिसाब से करें जो करके ये बिल्डिंग के पुराने टेनेंट हैं उनको उनका घर मिले और प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक कम से कम समय के अंदर कंप्लीट होगा. सर डैड बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं. Yes. ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके Yes. ऊपर. क्या कुछ देखते हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे होल प्रोजेक्ट के बारे में? नहीं, सेम चीज़ है जैसे कि पापा ने बताया कि जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे एंड बेस्ट ऑफ द क्वालिटी से कंप्लीट करेंगे. एंड होपफुली द पीपल हु स्टे हियर एंजॉय व्हाट वी आर मेकिंग. दिस बिल्डिंग इज नेम्ड एज एटलांटिस एंड ये बिल्डिंग के नाम के हिसाब से इट्स अ हाई एंड प्रोडक्ट एंड we expect that best of the best people in Khar Bandra living, if they want to opt in for a larger flat, a bigger flat, a better building, this could be a very very right choice for them. क्या कुछ See, we have all sorts of amenities out here, so we've tried to inculcate whatever we could best in the plan. So I hope people enjoy. पर फ्लोर जी, जैसे मैंने बताया कि हाई एंड बिल्डिंग है एंड पार्किंग, स्विमिंग पूल, अदर एम्यूनिटीज, टोटली फुल्ली लोडेड बिल्डिंग एंड वी कुड वेरी प्राउडली से दैट वी आर सेकंड टू नन इन खार एंड दिस प्रोडक्ट कुड precisely sell well in Khar and in time to come it will be a pride of Khar. बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो स्ट्रक्चर का आउटलुक ये हिसाब से रहेगा जिसमें घर जैसा घर लगे, वो होटल जैसा नहीं लगना चाहिए. तो इट वुड बी अ गुड मेंटेनेंस फ्री स्ट्रक्चर एंड फॉर टाइम टू कम जो लोग यहाँ के रहवासी रहेंगे उनको स्ट्रक्चर एंजॉय करना है. स्ट्रक्चर को ग्लास फसाड़ बना के या इस प्रकार का फसाड़ बना के कि जो एक होटल या ऑफिस बिल्डिंग जैसा लगे, ऐसा ना बना के वी आर गोइंग टू मेक इट अ गुड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अ प्रैक्टिकल बिल्डिंग विच इज़ गुड टू लिव इन टू इट. और रेजिडेंशियल को पहले से थे उनके लिए अलग से कुछ सुविधा रखने वाले हो या तो सेम इन लोगों को फ्लैट परचेस किया है उनको सेम एज इट इज़ रहेगा?
हमारी कंपनी के कोई भी प्रोजेक्ट में हमारे कॉमन यूएसपी है, हमारे कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर मेंबर या टेनेंट के फ्लैट की एमिनिटीज़ और हमारे सेल की एमिनिटीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं रहता है। ज़्यादा करके हमारे सारे बिल्डिंग जहाँ भी हम काम करते हैं वो कंपोजिट बिल्डिंग रहते हैं। तो वी टेक इट इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल एथिकल मैनर दैट आवर मेंबर्स आवर टेनेंट्स आर क्वा आवर ओनर्स। So there is no discrimination in terms of amenities. Not only this project, but any project, whether we deal in any sort of scheme, हायर इनकम में करें, मीडियम इनकम में करें या लोअर इनकम में करें, हमारी एमिनिटीज़ में कहीं भी कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। टेनेंट को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम लोग एक बाइसेक्टेड वर्ग है, उनको बिल्डिंग की सारी एमिनिटीज़ में एक्सेस रहता है। जो सेल कंपोनेंट एंजॉय करेगा वही चीज़ टेनेंट कंपोनेंट भी एंजॉय करेगा। It's a very strong brand. We wanted someone who can, help us, guide us. Comparatively, we are a, newcomer. Like not in this particular car market, we are a new developers. So we wanted that little guidance. It's a wonderful experience working with Ajmera, and and we are also happy that a lot of great personalities have come to the event to grace this. So the major reasons why people should come here and buy houses in this project is the design. If you see the internal layouts, the space planning, room sizes, the living room sizes, all the internal spacing, also the amenity podium level spacings, the areas what we have created, it's amazing. You can compare it to any other project and you'll definitely feel that this is better than most of the projects in the vicinity. So I think that is a plus point, that people will love this project and hopefully will be able to deliver in time. मुंबई में देखा गया है कि जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू होते हैं उसके लिए प्रॉपर टाइम पीरियड जो अंदर होना चाहिए, स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होते तो घर मिलते भी बहुत समय लग जाती है। आप ऐसे जो देखते हुए आपका स्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो है कितने सालों में खत्म होता है? So good thing is that our plinth is already ready. So we are actually launching the project after completing the plinth, right? So from here we are expecting somewhere around 2.5 years to complete the entire project, and we will actually display the building completion timeline on the outside on the outdoors, right? So any person can actually see. That is our commitment. We can actually we are telling the world that we will complete the building in this much, these many days, this much period, hours, whatever. But we are giving that commitment out in the open. एनवायरमेंट और DMCs के जो है कॉर्पोरेटिव सही समय पर हुआ है आपका, क्योंकि उसी के लिए भी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। बिल्डिंग 90-80% ऐसे बिल्डिंग है जो उसी नहीं है। सो एनवायरमेंट ये प्रोजेक्ट में लागू नहीं होता है, सिंस वो क्राइटेरिया के हम लोग नीचे है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए रिक्वायर 20,000 स्क्वायर मीटर्स, वी आर वे बिलो दैट. So environment is not an issue. Also right now we have 15 floors CC. There are total 18 floors, and within couple of months we'll take the entire full CC of the project. So there won't be any permissions pending.